entrance from the party stronghold of Amethi in Uttar Pradesh. Now he says that the people of Amethi love him, they know about his humanitarian work and want him to fight the elections from the seat. Taking a dig at Amethi's current MP Smriti Irani, where Robert Vadra said, and I quote, that the person who's been elected last time is only concerned with attacking the Gandhi Parivar and not with ensuring the development of the area and the well-being of the people. Listen in to how interest is now been put in by Robert Vadra as he pitches for himself to contest the upcoming elections. मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं। अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं। Now, while Robert Vadra has taken claim on the Amethi seat, sources telling your channel that the party is not considering his name from the bastion for now. All eyes, however, will be on the Congress next CEC meeting, where pending seats of Uttar Pradesh are likely to be finalized. Remember, the seats of Rai Bareli and Amethi, their candidates have still not been announced. But meanwhile, Union Minister and BJP's candidate from Amethi, Smriti Irani, took a swipe at Rahul Gandhi, saying that the Gandhis ignored and people cheated the people of Amethi, and they are going to do the same for the people in Wayanad. The Gandhi family says that the constituency of Amethi has been their family for 50 years. Who changes families? So, so they have deceived the people of Amethi. Now they hope to deceive the people of Wayanad, and that is why two questions that are confronting the voters of Wayanad. If Amethi was family for 50 years, why did they desert that family? Meanwhile, the BJP continues to mount attack on Congress after Robert Vadra made a pitch for himself, calling him a leftover Gandhi Parivar member. हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रॉबर्ट वाड्रा, जिनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है, जमीनों के मामलों के बहुत विशेषज्ञ हैं, अब वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जमीन पर आना चाहते हैं। सच बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की भगदड़ मची हुई है, तो अब परिवार के बचे कुचे लोगों को भी सामने लाना ही पड़ेगा और इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा की जो लंबे समय तक एक दबी हुई इच्छा थी, अब वो खुल करके सामने आ रही है। हम तो स्वागत करेंगे, वो परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के सामने आए, हम उन्हें पराजित करके फिर से भेजने का काम करेंगे। However, support coming in from the side of the Samajwadi Party, saying that whatever Congress Party decides, the Samajwadi Party will support the Congress candidate. देखिए, कांग्रेस पार्टी का विषय है, उनका निर्णय है कि वो अपने किस सीट से जो उनके खाते में आई है किसको प्रत्याशी उतारती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें हैं उनमें जो भी प्रत्याशी होगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उसको जिताने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करेगा और पूरी प्रयास करेगा। Meanwhile, the chorus from Vadra's side in Amethi seems to be growing as the Congress party cadres are now demanding that Robert Vadra be fielded from Amethi. There are social media posts that are now being put up backing Robert Vadra as far as asking the people of Amethi to support Robert Vadra. Let me go across to Adeep now. Adeep joining us for a quick live update. Adeep, good morning. What do we make of these posters? Now, of course, the Congress party has not officially put out the name of Robert Vadra. He's not even a part of the Congress party. But will he contest from Amethi?
Well, the announcement made by Robert Vadra is a big statement, and the people of Amethi, the Congress cadre, has now is seeing as a beacon of hope. They have put out the posters and demanding that Robert Vadra should contest from Amethi, as he is the member of the Gandhi family, and they will support Gandhi family. But however, on the other hand, the people of Amethi have a different voice. They are saying that Smriti Irani has done the development in the past 5 years. There are some supporters of the Gandhi family also who is saying that no matter who comes from the Gandhi family, we will support the Gandhi family member. In fact, I am joined by a group of people right now. We will get some quick reactions from them as we speak. रॉबर्ट वाड्रा ने यहाँ पे चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। रॉबर्ट वाड्रा अगर चुनाव लड़ते हैं, कितना असर होगा? स्मृति ईरानी को क्या टक्कर दे पाएंगे? स्मृति को टक्कर नहीं दे पाएंगे रॉबर्ट वाड्रा। और उनकी अगर उन्होंने मंशा जाहिर की है तो लड़ें, क्योंकि उनके ससुराल है, उनके ससुराल का घर है, यहाँ पे जो है गांधी परिवार का घर माना जाता है, गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ का विकास खाली गांधी परिवार ने किया है। 10 साल हो गए यहाँ भाजपा के शासनकाल में, जो है अभी तक एक कल कारखाना या फैक्ट्री किसी प्रकार की कोई यहाँ लगी नहीं है जिससे रोजगार मुहैया हो सके। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। किस तरह से चुनाव जाएगा ये? चूंकि जैसे इस समय देख रहे हैं आप, राम मंदिर मस्जिद, ये सब अगड़म बगड़म जो बहुत सारे चीजें हैं लोगों के जहान में है, कहीं ना कहीं जो है लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से हिंदूमय हो चुका है। तो ज्यादा कोष लोग भाजपा को देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां गांधी परिवार की बात आएगी, लोग यहाँ के गांधी परिवार को चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा परिवार है और हम उनको वोट देंगे। तो गांधी परिवार के नाम पे वोट मिलेगा या रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे? रॉबर्ट वाड्रा को लोग जानते हैं अमेठी की क्या, जो उनको वोट देंगे, या स्मृति ईरानी को टक्कर मिलेगी? रॉबर्ट वाड्रा को लोग सुनते हैं, हल्का फुल्का जानते भी हैं कि फलाने के दामाद हैं, मगर जहां चुनाव की बात है, रॉबर्ट वाड्रा जो है वो स्मृति ईरानी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। टक्कर तो राहुल गांधी देंगे, आराधना मिश्रा देंगी, आराधना यहाँ के लोकल हैं, वो टक्कर देंगी, वो चुनाव हरा भी देंगी इनको। तो क्या आप लोग का भी यही मानना है कि राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा आएंगे, स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे? स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। क्या इस बार क्या नतीजे रहने वाले चुनाव के, कौन टक्कर देगा? नहीं, नतीजे तो ठीक ठाक ही रहेंगे, नतीजों की कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस यहाँ थी, रहेगी, सदा रहेगी। फर्क ये है कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर ये मुद्दा होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं तो काफी लोग ऐसे होंगे जो राम मंदिर के नाम पर स्मृति ईरानी जी को वोट देंगे। मंदिर मुद्दा होगा। द पीपल ऑफ अमेठी आर सेइंग दैट द राम टेम्पल विल बी अ मेजर इशू इन अमेठी। पीपल विल वोट for Smriti Irani as she has been working in Amethi, while the others have to say that the Gandhi family will get votes from Amethi. Well, mixed reactions coming in really from the Janta of Amethi. They will try and get you more on that. As far as Robert Vadra pitching for himself, remains to be seen what is decided in the next Congress EC. Adeep, thank you very much for joining in. Let's talk about